જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દીમાં પાઠ 16 ભારતીય સંસ્કૃતિ મેં ગુરુ શિષ્ય સંબંધ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. એના લેખક છે આનંદ શંકર માધવન. એમને કટાક્ષ કરતાં કીધું છે કે પહેલાંના સમયમાં જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હતી અભ્યાસ કરવાની અને આજના સમયમાં મોટાભાગે ઘણો બધો એમાં બદલાવ આવી ગયેલો છે. એમાં આ પાઠમાં એમને રજૂઆત કરી છે આનંદ શંકર માધવને, જે આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે લેખકનો પરિચય મેળવીએ. श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के केवलन जिले में हुआ था. केरल से ये આપણે દક્ષિણ ભારતમાં આવેલું છે, ત્યાં આગળ કેવલન જિલ્લે છે, ત્યાં આગળ એમનો જન્મ થયો હતો. डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षकर बन गए. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा. जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया. लेखक आनंद शंकर माधवन હતા, એમને કારાવાસ પણ ભોગ્યો હતો, ત્યાં જેલમાં હતા. એમને શું કર્યું, ત્યાં હિન્દી ભાષાનો અભ્યાસ કરેલો હતો. જેલ से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े. જેવા જેલમાંથી બહાર નીકળ્યા અને શું કર્યું, આખા ભારતની પરિક્રમા, આખા ભારતમાં એ ફર્યા અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, निकल पड़े. और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की. जो मित्रों घણા બધા પ્રશ્નો છે ને આપણા એ આ પાઠમાંથી લેખકના પરિચયમાંથી પણ પૂછાતા હોય છે, તો આપણે આ પ્રશ્નો પણ એકદમ તૈયાર કરી નાખવાના કે આ લેખક કેટલા ભારત ભ્રમણ કર્યું હતું, પછી જેલમાં રહ્યા હતા, પછી એમને કઈ ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હતો, પછી એમને બિહારમાં કઈ વિદ્યાપીઠ, તો શું આવશે, मंदार विद्यापीठ की स्थापना की. कई साल में, तो सन 1984 में अद्वैत मिशन और 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की. अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक है. एवो प्रश्न पूछाय कि त्रण संचालकना कया स्थापक છે, કઈ કઈ રચના કરી છે, કયા કયા સ્થાપ્યા, તો આ ત્રણેયમાં આવશે. એ સિવાય આગળ मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की. आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है. बिखरे हीरे, आ બધા લેખકે જે રચેલા સાહિત્ય છે એના વિશે વાત કરેલી છે. बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचना है. एवो તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે આનંદ શંકર માધવે કઈ કઈ રચના કરેલી છે સાહિત્યમાં, તો આ નીચેની છે એ આવી શકશે જવાબમાં. એમાં આમંત્રિત મહેમાન બિહાર રાષ્ટ્રભાષા પરિષદ દ્વારા પુરસ્કૃત છે. એમાં જે આમંત્રિત મહેમાન છે એ બિહાર જે રાષ્ટ્રભાષા છે એના દ્વારા શું કર્યું, એને સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે, એને પુરસ્કાર મળેલો છે. આગળ माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करार व्यंग किया है. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है. इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था. उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी. क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है. लेखके आ पाठनी एमने शॉर्टમાં માહિતી આપી છે. તમને સમજાવું કે પહેલાના સમયમાં ગુરુકુળમાં અભ્યાસ કરવામાં આવતો. તમને ખ્યાલ હોય 4 વિદ્યાપીઠ હતી, એમાંથી એક આપણે ગુજરાતમાં આવેલી છે વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. ભાવનગર જિલ્લામાં જે વલ્લભી નગર આવેલો, વલ્લભીપુરીને વલ્લભીપુર નગર કહેવામાં આવે, વલ્લભી વિદ્યાપીઠ ત્યાં આગળ આવેલી છે. પહેલાંના સમયમાં જે મિત્રો હતો ને, જ્યાં શિક્ષણ લેવામાં કોઈ પણ પૈસાની લેવડ દેવડ કરવામાં આવતી નથી. અત્યારે સામાન્ય ક્લાસ કરવાના હોય ને તો પણ પૈસા લેશે. સ્પોર્ટના હોય કે મ્યુઝિકના હોય કે ડાન્સના હોય કે ગરબા શીખવા હોય કે તમે કોઈ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની, તો પણ એને શું છે, ફી લેશે. પહેલાંના સમયમાં આવું નહોતું, નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરવામાં આવતી હતી. ગુરુ કોઈ પણ એક રૂપિયાનો લેવડ દેવડ કરતા હતા નહીં. એ આ પાઠમાં કીધું. શા માટે કે અત્યારનો જે આપણે યુગ છે ભારત દેશ, એ પશ્ચિમી યુરોપના દેશ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ ગયો છે. એની બધું વિદેશમાં ભણવા જવું એ બાબત સારી જ છે, પણ એના બદલામાં આપણી સંસ્કૃતિ ભૂલી જવી ના જોઈએ. ત્યાં શીખવું બધી વાત સાચી, પણ એવું તો ક્યાંય કીધું નથી કે આપણે આપણી સંસ્કૃતિ ત્યાં ભૂલવે મૂકીને આવતા રહેવી.
અભ્યાસ તો દરેક જગ્યાએ કરવો જોઈએ, દરેક બધું શીખવું જ જોઈએ વ્યક્તિએ, પણ પોતાની સંસ્કૃતિ ક્યારેય ભૂલવી જોઈએ નહીં. હવે આપણે પાઠમાં વિસ્તારથી સમજીએ. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया. व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला, વ્યવસાયિક એટલે શું થાય કે જ્યાં પૈસાની લેવડ દેવડ થતી હોય એનો કે શું કહેવાય, વ્યવસાય થાય. અત્યારે તમે જો કોચિંગ ક્લાસીસ એટલા બધા ખુલી ગયા હશે ને, ત્યાં આટલો કોર્સ કરો તો આટલા પૈસા, આટલો કોર્સ કરો તો આટલા પૈસા. इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय मंदिर के सामने समान माने जाए. પહેલાંના જે વિદ્યાલય સ્કૂલ હતા એ શું તો મંદિરની સમાન હતું. મંદિરમાં શું કરવાની હોય, આપણે પૂજા અર્ચના કરવા માટે જતા હોય, અને અત્યારે એ એક પૈસા કમાવાનું માધ્યમ બની ગયું છે, એવું કહેવા માગે છે લેખક આપણને. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था. पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाए. कोई पण संजोगों इस समय में पैसा आपीने कोई शिक्षण प्राप्त करतु हतुं ज नहीं. आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया. અત્યારે કેવું થઈ ગયું છે એનાથી વિપરીત. ગમે તે તમે કોર્સ કરો, ગમે તે સ્કૂલમાં ભણો તો શું થશે, ડોનેશન માટે, એડમિશન માટે પણ ફી માગે. સિલેબસ તો એક બાજુ રહ્યો છે. માનો કે તમે MBBS કરવા જતા હોય, ડૉક્ટરી કરી હોય કે એન્જિનિયરિંગ કરી હોય તો સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં 40-40 લાખની એટલી ફી ભરવી પડે છે MBBSમાં. चलो આગળ. जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है. आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है. જડ એટલે કે એના મૂળિયા સુધી આપણે પ્રયત્ન કરીએ ગોતવા, આ બધું ક્યાંથી બધું શીખલાયા માણસો, આટલું બધું ફી લેવાનું, પૈસા લેવાનું, ગુરુ શિષ્ય જે પ્રણાલી હતી એ કેમ આટલો બધો આમાં ચેન્જ આવ્યો, કેમ બધું બદલાઈ ગયો? તો આના મૂળિયા ક્યાં સુધી મળે છે? યુરોપમાં. યુરોપ એટલે જે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ આવે છે ને એની વાત કરી છે. भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहारों में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया. यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था. पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है. આપણા ભારત દેશ વિશે કહે છે કે આપણા ભારત દેશમાં એવું નહોતું કે તમે પૈસા આપો ને તમને શિક્ષણ કાર્ય કહે. એ ક્યારે પણ કોઈ આખા ભારત દેશમાં એવું હતું જ નહીં. બધા ગુરુકુળો હતા ત્યાં શું કરતા હતા, બધા વિદ્યાભ્યાસ માટે નિઃશુલ્ક ભાવે જતા હતા, અને ઘણા બધા ત્યાં શિક્ષણ કાર્ય થતું હતું. ખાલી ભણવાનું નહીં, શસ્ત્ર વિદ્યા, પછી ઘણી બધી વિદ્યા, તર્ક વિદ્યા પણ એ થતું હતું. યોગાસન થતા હતા, બધું. આગળ. शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे. गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था. गुरुने શું થાય, સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે એ રીતે માનવામાં આવતું હતું. શિષ્ય પુત્ર से अधिक प्रिय थे. પોતાનો વિદ્યાર્થી કેટલો પોતાના પુત્ર સમાન પણ વધારે પ્રિય ગુરુને લાગતા હતા. यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य. ગુરુને કોઈ પણ આર્થિક એટલે પૈસાની ઈચ્છા નથી. એમને શું થતું હતું કે એમનો શિષ્ય એમને શું કરે, એમને વંદન કરે, એમને પ્રણામ કરે, એમને માન સન્માન મળે, એમની કીર્તિ વધે. એ જ એમનું લક્ષ્ય હતું પહેલાં ગુરુઓની. પૈસાનું કોઈ પણ માધ્યમ હતું નહીં. प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था. परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था. वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है. પહેલાંના સમયમાં જોઈએ તો આજની વિપરીત અસર થઈ ગઈ છે. અત્યારે શું કે ગમે તેમ કોર્સ કરવા જાઓ તો પૈસાની ફી. નાનું 1 થી 5 ધોરણના છોકરા ભણાવવાના તો કે 300 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, આ રીતે પેટ પાલને કા સાધન બન ગયા અત્યારે. લેખક વ્યંગમાં કહે છે કે પહેલાંની સ્થિતિ જોવો ને અત્યારની સ્થિતિ જોવો, તમે કેટલો બધો તફાવત છે. શિક્ષણ આજે દિવસે ને દિવસે મિત્રો મોંઘું થતું ગયું, એટલે વધારે કિંમતી થતું ગયું છે. જે મધ્યમ વર્ગના કે ગરીબ વર્ગના બાળકોને મેળવવું બહુ જ મુશ્કેલ વાળું છે. પહેલાંના સમયમાં આવું નહોતું. બધી જ્ઞાતિના બધા ગરીબ કે તવંગર બધા એક જ જગ્યાએ રહીને અભ્યાસ કરતા હતા. આગળ. प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़ मलाई लेकर स्वागत करने लगे. હવે આગળ વ્યંગમાં કહેશે કે આપણા દેશમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે એટલી મહેનત કરતો હોય ત્યારે એને કોઈ મહત્ત્વ આપતું નથી. બીજા દેશના લોકો એની પ્રશંસા કરે અથવા કોઈ રીતે ફેમસ થઈ જાય ને તો બધા એની જય જયકાર કરવા લાગે. થોડા દિવસો પહેલાં આપણે પેલો નીરજ ચોપડા હતા, એ બરછી ફેંકમાં સારો એવો ગોલ્ડ મેડલ લઈ લીધો એમને, તો આખો દેશ એમને ઓળખવા લાગ્યો. એ સિવાય ઓળખતું નહોતું. એવી રીતે જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ હતા એમનું કોઈ મહત્ત્વ હતું નહીં.
જ્યારે એ અમેરિકા ગયા અને વિશ્વ પર ભાગ લીધો અને એમનું મહત્વ બીજા દેશનાને સમજાયું ને ત્યારે એમને ખ્યાલ આવ્યો અને બધા દેશના આપણા શું દેશના લોકો સ્વામી વિવેકાનંદ કરવા અને પાછળ દોડવા લાગ્યા। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ यह राग अल्पाते हुए आमदेव ठाकुर अमादेव ठाकुर सुपूत दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था। एवी रीते आगळ जे रविंद्रनाथ ठाकुर था एमने पण नोबेल पुरस्कार मळ्यो एटले बहु चर्चाना विषय बनी गया। एक तो आ मीडियावाळा पछी एने शुं करे चर्चाना माध्यमथी बधे फॉलो करे बधाने अने प्रख्यात बनी जाए पछी ए बधा माटे जाणीता थई जाए। एवी रीते आगळ कहेशे जे रीते आपणे भारतनाट्यम जे આપણું નૃત્ય હતું ને એ કોઈને ખબર નથી પણ વિદેશમાં એની જે બોલબાલા વધી બધા વખાણ કર્યા એટલે ભારત દેશના પણ શું કરવા માંડ્યા વખાણ કરવા માંડ્યા એને। कथकली को कोई नहीं पूछता था पर अब जब विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ भी पड़ी है भी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती ही नज़र नहीं आती मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयासी हो सकता है। हवे जी जर्मनी देशनो होय छे कोण होय मैक्स मुलर एने भारत देश में आपणे घणा बधा प्रयत्न कर्या जीवन तो पण एने प्रयत्न निष्फळ थया तो ए लोकोने शुं थाय आपणी भारतीय संस्कृति वधारे गमती होय छे यूरोपवाळाने के રહેણી કેણી पंजाबी देशों खावा पीवाने રહેણી કેરી पछी एमना पोशाक एम दक्षिण भारत में एमनो पोशाक एमनी बोली गुजरातना दरेकनुं एमने वधारे महत्व होय छे अने आपणे एमना अनुकरण करीए छीए पण ए लोको पोतानी संस्कृति भूलता नथी अने आपणे शुं करवी छे एमनी संस्कृति अपना लेवी छे अने आपणी संस्कृति भूली जईए छे एवुं करवुं जोईए नहीं। आगळ शुं कहे छे कि प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयासी हो। गधे को गणित सिखाना आ एक मुहारो तरीके आपणे पूछाई शके परीक्षा में तो गधे को गणित सिखाना शुं आवे कि व्यर्थ प्रशंसा करना शुं करा प्रशंसा करना अथवा व्यर्थ प्रयास करना। कोई एवो मूर्ख व्यक्ति हो गमे एटલું શીખવાડો तो એને याद ना रहे भाई ने गणित શીખવાડો कि अंग्रेजी શીખવાડો तो એને याद रहे नहीं। तो आनो मुहारो तमारे परीक्षा में पूछाई शके मित्रों कि गधे को गणित सिखाना तो एनो मुहारानो अर्थ शुं थाय कि व्यर्थ प्रयत्न करना अथवा व्यर्थ प्रयास करना। मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षाक्रम में रंग नहीं थे इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार को चेहरे ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ हमारा अपना एक निजी रहन सहन है शायद इससे आप परिचित नहीं है जिससे लड़के का आपने नाम लिया। और एक बीजो प्रसंगनी बात करी है कि एक पहलवान होय छे घणो बधो प्रसिद्ध होय छे मुंबई आवीने शुं कीधुं कि माने साथे कुस्तीमां मने हरावो तो सामे एक पत्रकार आवे छे। पत्रकारे कीधुं कि तमे तमारा शिष्यो जे तमे शीखवाड्युं छे ने एनी साथे युद्ध करो एनी साथे तमे कुस्ती करो ने तो सरस मजानो जवाब आवे छे पहलवान कि मैं तो मारा शिष्योने शीखवाड्युं छे बधुं पण एमनी साथे हुं ना युद्ध आ रीते कुस्ती करीशुं। शा माटे कि ए आगळ निकळे ए तो मारी इच्छा छे ज ते पण हूँ मारा शिष्य ने मारा पुत्र करता पण वधारे शुं मानु छुं प्रिय मानु छुं। पुत्र विशेष महत्व आपे छे एमां अने एम कहे छे आगळ जता कि वधारे वधारे प्रगति करता रहे एवी मारी आशा माराथी पण आगळ निकळे एवो एक गुरुमां भावना रहेली छे। आगळ एक आमां मुहावरो आवे छे ताकते ही रह गए तो एनो शुं थशे मुहावरानो अर्थ थशे आश्चर्य से देखना। वाक्य प्रयोग करो तो तमे આવી રીતે કરી શકાય એનો कि मेरे हाथों में ट्रॉफी देकर पिताजी मुझे ताकते ही रह गए। कोई पण एवा तमे शिक्षण कार्यमां के कोई स्पोर्टमां तमे सरस मजानुं रिजल्ट लाया होय तमे लईने जता होय मार्कशीट के ट्रॉफी लईने तो तमारा पिताजी एकदम आश्चर्यचकित थईने तमारा सामु जोया करे। पत्रकार अने पेला पहलवाननी वातचीत उपरथी पछी आगळ वह मेरे पसीने की कमाई मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है इसमें और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं।
मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारे इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव से हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कभी प्रभावित रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं। आगळ कैसे पहलवान કે એ જીતે કે હું જીતું એમાં કંઈ ફેર નથી, મારા શિષ્ય મારાથી પણ વધારે આગળ વધે એવી મારી મનોકામના છે। અને અમે પત્રકારને છેલ્લે એવું કહે છે કે તમે આ એ વાત કરો છો ને તમે હિન્દુસ્તાની નથી, મને એવો શંકા થાય છે। આગળ, भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया है जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रोकर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण परमहंस था, एमना शिष्य था स्वामी विवेकानंद। कहेवाय छे कि एमने आवा शिष्य मेळववा माटे घणी बधी प्रार्थना करवी पड़ती हती, तो आवा शिष्य एमने मळ्या। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। सारा गुरुना लक्षणों से कि एमने सारा एवा शिष्य मळे ए ज एमने वधारे अभिप्राय रहेलो होय छे कि संतान न चाले पण एमने सारा एवा शिष्य मळवा जोईए। इस संबंध में भगवान ईसुનું आमां उदाहरण आप्युं छे आगळ कि भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान है। कि एमना जे अनुयायी है ने ए मारा करता पण वधारे महान है। एमना जे भक्तो है कि मारा करता पण वधारे महान है। उनकी जूतियाँ होने की योग्यता मुझ में, उनकी जूतियाँ एमनुं वाक्य तो केटલું કે એમની જૂતિયા જીવનો પગમાં પહેરવાનું જે પાત્ર જે છે એના બરાબર પણ હું નથી, એટલું ઈસુ ભગવાન કહે છે આગળ। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इस पथ के यात्री रहे। आगे लेखक समझावता कहे छे कि जे संगीतकार होय छे ने ए संगीत वगाड़ता होय कोई म्यूजिक तो सांभळे सामान्य पक्ष में सांभळवा श्रोता ना होय ने तो कई एनुं महत्व ना होय, तो वधारे महत्व कोण आपे छे? એ સંગીતકાર સાંભળે જે શ્રોતાઓ સાંભળે છે એ રીતે કોઈ ગાયક કલાકાર ગમે એવું ગીત ગાતા હોય તો એને સાંભળનારા ના હોય તો એ બધું વ્યર્થ જ છે। વધારે મહત્વ કોને આપે છે? સાંભળનારા છે। એવી રીતે આગળ એમને ફૂલનું ઉદાહરણ આપ્યું કે ફૂલની સુંદરતા જોઈને બધા લોકો એના તરફ આકર્ષાય છે, કેમ કાંટા પાસે કોઈ જતું નથી, તો એની સુંદરતાનું એ રીતે એ સમજાવે છે કે જો એને કોઈ એનું મહત્વ કોઈ પોતાની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે વિચારતો હોય, નથી કહેતા દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ, તમને જેવું વિચારો એવો તમને દેખાય। આગળ, उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परक गुण की साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मेलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। रामायणी एटले के जे रामायण कथानु जे गुणगान करता हो ने ए, और आज देहातों में भरत मियाँ, रजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते। उत्तम गुरु के अत्यारना जमानामां शुं छे के नात जातनो भेदभाव बिल्कुल राखवो न जोईए। जो शिक्षण कार्यमां कोई क्षेत्रमां होय तो आ हिंदू छे के आ मुसलमान छे के सिख छे, ईसाई के पारसी, जैन, एवुं कोई पण शिक्षण व्यवसायमां एवुं ना होवुं जोईए। एमां शुं जोईए? एमनी कारकिर्दी जोईए, एमां कुशलता जोईए, एनामां विद्यार्थीमां एनी निपुणता जोईए कि केटलो होशियार छे, केटला एनामां आवडत छे। आमां नात जातनुं एकदम आमां शुं लेखके एनो व्यंग कर्यो छे। नात जातनुं आपणे कोई प्रकारे राखवुं ज न जोईए। आगळ, आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं। आजना गुरु शू है कि शिष्यों पास सारू सारू काम करावे, तो गुरु ने खरेखर केवो होवो जोईए कि एनु मान सम्मान होवो जोईए, एनु शिष्यों पास सेवा करवानो कोई एनो आदर एवो भाव न राखवो जोईए कि शिष्यो मारी सेवा करे।
उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा शू से उपनिषदों में कीधुं छे सेवा शू से आपवानी वस्तु से लेवानी नहीं। हमेशा आपणे बीजानी सेवा करवानो आग्रह राखवो जोईए। गमे ते समय लेवल पर पहोंचो तो हमेशा आपणे सेवा करवानो आग्रह राखवो जोईए। सेवा लेने के अधिकारी सेवा खरेखर कोनी करवी जोईए तो आमां कीधुं छे लेखके सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और बुद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त समझे। कैसे जी नाना बाळको से, जी बेघर से, जी खरेखर अपंग से, जेने आँखों नहीं, हाथ पग नहीं, जे वृद्ध से पोतानी साथे कार्य करी शकता नहीं, ए लोकोनी आपणे सेवा करवी जोईए। सरस मजानुं शरीर होय बेठो बेठो ऑर्डर करतो एनी आपणे सेवा करवी जोईए नहीं। कोई दिवस खाई के बधुं होय काम कशुं करी शकता ना होय तो एवानी आपणे सेवा करवानी कई जरूर नहीं। एवो लेखके आमां व्यंग कर्यो छे। आगळ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। कोई पण मंदिर में मूर्ति होय ने तो एमां एम कहेवाय छे के एमां प्राण पूरेला होय, एमां तेज होय, एमां भाई नित्य धूप दीप आरती क्रम प्रमाणे रहवुं जोईए कि 5 वागे के 7 वागे आरती थती होय तो 7 वागे थवी ज जोईए। आटला वागे भगवानने थाळ जमाड़ता होय तो ए समय जमाड़ी ज देवो पड़े। एक दी तमे 11:30 टाइम होय पछी 2 वागे जमाड़ो ने 3 वागे एवुं रीते नहीं। आज 12 गाम ज्ञान तमे बंध राखो मंदिर एवुं ना होय तो एनुं कार्य पण एवुं ज थई जाय। जो तमारे कोई अभ्यासक्रम में सिद्धि प्राप्त करी होय गमे ते क्षेत्र में तो तमारे टाइम टेबल प्रमाणे बनावीने एनुं वांचन करवुं पड़े हमेशा तो तमे जीपीएससी के यूपीएससी पास करी शको। बाकी तमे एक दिवस वाँचो 3 दिवस वाँचो नहीं तो कशुं तमारुं कार्य सिद्ध थाय नहीं। एक दिवस स्कूल जाओ 2 दिवस स्कूल ना जाओ आ तो मने नहीं आवड़े आ बधुं कार्य करो तमे कोई दिवस सफलता प्राप्त करी शकवाना नहीं। ए रीते मैं देवतत्वनुं उदाहरण आप्युं कि मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक की संभव ही जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना रही। तो पुजारी कई रीते पूजा करे छे कि पुजारी ने शू वेला 4 साढ़ा 4 जागीने जे नित्यक्रम से जाळवी राखवो जोईए तो तेमां आजूबाजूवाळा तो शू विचारे कि आ मंदिरना पुजारीनुं कोई ठेकाणुं नथी। एक दी 5 वागे आरती करे छे जागे तो बाकी करताय नथी 3 दाड़ा लगी तो एमां एवुं ज होय। बस विद्यार्थी मित्रों आटलो ज पाठ छे। आपणे हवे आपणे आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नो तमारी पाकी नोटमां लखजो अने एकदार पाठनुं शांतिथी वांचन करजो। जय स्वामिनारायण मित्रों, नमस्ते।